जो बैकवर्ड विलेजेस है, मतलब द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी मच टफ देयर। मतलब वो डिसाइड नहीं कर पाते कि हमको क्या करना है, आधे तो छोड़ देते हैं। इट्स ऑल्सो डिसाइड फ्रॉम डिफरेंट बैकवर्ड विलेजेस डिसाइड टू क्विट देयर स्टडीज़। बट एहसास इंटरनेशनल ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट है जो उन बच्चों पर फोकस करता है कि इन बच्चों का फ्यूचर रूइन ना हो, क्योंकि एज इट्स वेल सेड, स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। सो मुझे लगता है एहसास इंटरनेशनल ट्रस्ट इज़ द ओनली ट्रस्ट दैट फोकसेस ऑन दिस मोटो दैट स्टूडेंट इज़ द फ्यूचर ऑफ द नेशन। एहसास इंटरनेशनल ट्रस्ट whose main motive is to ensure among the students to promote quality education to the various institutions like JIT, GI and many others like ERA Medical College. The growing up students, which you say the student which have completed their 12th and they don't know how to get the admission, the psychological war which is going on in their mind, they don't know what I have to do. Is there is a education after the 12th, how to get the admission outside the Kashmir? 12th के बाद मैंने 2 साल ऐसे दिए क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर पाऊँ। उसके बाद 2 सालों के बाद मैंने सुना है कि एहसास ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प मिला और मैंने यहाँ लखनऊ में ERA यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। जो मेरे पीछे कॉलेज है ये वही है, ERA लखनऊ कॉलेज है, ERA मेडिकल कॉलेज। मैं एहसास इंटरनेशनल का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी आला तालीम हासिल करने में मेरे भरपूर सहयोग किया, मदद की। मुझे एहसास इंटरनेशनल के बारे में अपने दोस्तों से पता चला था जब मैं तैयारी कर रहा था एंट्रेंस के लिए, तो मुझे नहीं पता था कि इतना जल्दी मेरा MBBS में अपना करियर बना पाऊँगा। माय फादर इज़ अ फार्मर। वो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन एहसास वालों ने मुझे ख्वाब पूरा करने का एक अच्छा सा रास्ता दिखाया। Presently, I am pursuing BTech in Civil Engineering, 3rd year, from Jahangirabad Educational Trust Group of Institutions, situated at Lucknow. The classmates at that time were studying with me in the 12th. Some pursue their careers in abroad, in Bangladesh, and others in different states. But I was not able to bear such kind of amount to get admission to pursue a career in MBBS or in any other paramedical course in abroad or different states, because it was very much tough for me because I belong to a poor family. का जो मकसद है, मेन मकसद उनका मकसद ये है कि जो मतलब डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिनके गाँव में या जिनके इलाके में मतलब वो उतना एफर्ट नहीं कर सकते हैं मतलब पढ़ना, दे वांट टू अपलिफ्ट दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू कंटिन्यू देयर स्टडी आफ्टर 10th या आफ्टर +2. I am pursuing BTech in Electronics and Communication. The name of this college is Jahangirabad Institute of Technology, which is affiliated by AKTU, Abdul Kalam Technical University. The main point to choose this college is about security, which is very important for a girl. I came to a decision to quit my studies and start doing a private job. So after I was doing a private job, I was not very much satisfied with that. I met the representatives of Ehsaas International. They are so much kind and helpful. Today you are seeing me wearing an apron with a B Pharmacy badge and talking in front of you. This is because of Ehsaas International Trust, because without them it was impossible. I can stand in front of you telling about the university, ERA University, the best university in India, and that trust helped me to pursue a career in B Pharmacy. ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो जम्मू कश्मीर के इलाके में उन बच्चों के लिए काम करती है जो वाकई फाइनेंशियली बहुत वीक हैं या उनको ऐसी मदद चाहिए जिसकी वजह कर वो अपनी आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हों। I think this was my great opportunity to select this college through Ehsaas International Trust, because I was in illusion which college I prefer after 10+2 examinations. I'm studying in Tehran University of Medical Sciences, Iran. यहाँ आना मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं था क्योंकि मैं फाइनेंशियली इतना साउंड नहीं थी। इवन उन्होंने मेरी जितनी हेल्प नहीं की है, मेरे जैसे बहुत सारे बच्चों की हेल्प की है एंड उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया। मुझे बहुत शौक था कि मैं MBBS कर रहा हूँ। मेरे से एक हादसा हुआ है जिस वजह से मतलब मैं MBBS को नहीं कर पाऊँ और मेरे पास वैसे सोर्सेज नहीं थे कि मैं MBBS
एडमिशन यानी MBBS कर पाऊँ। मतलब एक बंदा था, उसने कहा था कि मैं आपको MBBS करा दूंगा। फिर उसने मेरे डैडी को वर्ग लाया और उसके बाद मेरे डैडी से ऐसे हमारे पास खाली वो 10 मतलब की ज़मीन थी और उसको बेचकर हमने वो मतलब उसको पैसे दी। फिर उसके बाद 2013-14 में उसने 2 साल के बाद धोखा दिया था। फिर उसके बाद मैंने जो ही धोखा दिया था, मैंने हर खुशी मतलब हर मेरी जो ख्वाब थे उनके ऊपर पानी फेर गया था। They change the psychological, ideological and the behavioral way of the students. They go to the one place to another place. They go to the remote areas. They organize the camps. They go to the college seminars. They have revolutionized the minds of the students. School dromut bosu kara muzur albata ऐसा स्ट्रेस बे हेस दित सा हेक लाइफ में हेक मन लाइफ बने। जो इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं उन तमाम बच्चों को फाइनेंशियली सोशली सपोर्ट करते हैं जो कुछ आगे बनना चाहते हैं या करना चाहते हैं लेकिन उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। वो घर पे पटन तक 8 किलोमीटर पथरी सोस वारिया सफर मौसम पथरी उस पे कड़न तपर उस ट्रांसपोर्ट अवेलेबल कीनी बस वही गोल्ड स्टूडेंट ट्वेल्थ पास कर मेडिकल तक एजुकेशन वारिया कम साइंस एरियास में तक लड़के हेका पर कीनी तिकाज तक वारिया गरीबी मस लड़कन एरा मेडिकल कॉलेज में सा देना एडमिशन जिके मैं सो वारिया शौक में पास पर ब्रोकन पे मेडिकल फील्ड में अलबत्ता पेमेंट फैसिलिटी हसा अवेलेबल रोज इंद्रो स्कूल द्रोमुत बोस कर मजूर अलबत्ता ऐसा स्ट्रेस बे हेस दित सा हेक लाइफ में हेक मन लाइफ बने। लेकिन मेरा ये भी सपना था कि मैं किसी मतलब मेडिकल फील्ड में जाऊँ। तो पैरामेडिकल कोर्स के बारे में मतलब बहुत कुछ सुना था लेकिन वो भी नहीं कर पाता अगर मतलब एहसास की ओर से जो ऑर्गेनाइजेशन एहसास उन्होंने हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड की, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की। और मैं जहांगीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से जो बाराबंकी में है, लखनऊ से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर, ये उनको वादा करता हूँ कि ये इंस्टीट्यूशन जिस अंदाज से भी और जिस तरीक़े से भी इन बच्चों को सपोर्ट कर सकता है वो ज़रूर करेगा और हमेशा करता रहेगा।